हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है। कैसा है ब्रो? ठीक ठाक और आई एम सरप्राइज्ड यू डिडंट स्टार्ट विद shit. Used to that shit by now, bro. It was quite a shit performance. उससे मुझे याद है GTA 6 की फिर रिलीज डेट जो है वो आगे होगी। ना करो। नवंबर में होगी। लोग Wow. तपे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में। मैंने कहा ओके that's a good problem to have. I mean, I suppose so. खैर बहुत देर हो गई. I was in university when I played GTA 5. Yeah. So I mean that was a hot minute ago. Yes. But yeah, I mean shit performance by Pakistan. हाँ। Yeah, South Africa ने पड़खचियां उड़ाई हैं. पड़खचर्स. You know, they destroyed Pakistan. Destroyed, crushed, Decimated crumbled. them. Pulverized them. खत्म। हाँ उड़ा के रख दिए. Blown them to smithereens. Yes sir. Fair. An 8-wicket win for South Africa with 59 balls to spare. They were chasing 270, 40.1 overs में कर गए. ठीक है. 49 overs में नहीं किया. Yeah. खैर वो तो तब ड्यू नहीं थी. जो भी है. हाँ, but जो भी है bro. उसकी भी मिसालें हैं मेरे पास. ठीक है, but yeah, South Africa have managed to pulverize Pakistan and now they are South Africa's C team. of course. Yeah. Don't forget that. This is a very weak and inexperienced South African Yes. team. They've managed to level the series 1-1, so tomorrow will be the series decider. उसमें चलो थोड़ी excitement होगी. हाँ, चलो Yeah. context आ गया थोड़ा सा. थोड़ा सा context तो आ गया. But yeah, I mean, when we talk about weak and inexperienced, we're talking about how batting हल्की है. हाँ, बहुत हल्की है. You know, Sinithembak, शीले के बाद कोई as such proper batter है नहीं. और वो भी उसकी क्या 27 की एवरेज? हाँ, 27 की एवरेज थी लिस्ट क्रिकेट में. ठीक है. so- एंड yesterday when I was on Slog Sweepers, सैयद अली इमरान भाई जो है हमारे, ठीक है, पता नहीं पूरा नाम ही ले अली भाई का. अली भाई. ठीक है. अली भाई ने ना वो नंबर ऑफ गेम्स निकाली हुई थी दोनों टीम्स की. पाकिस्तान स्टूड एट लाइक 586, साउथ अफ्रीका 232. उसमें भी मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक को निकाल दो तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा ब्रो. कुछ बचना नहीं है सच वहां पे. ठीक है. सो आई मीन लुक, दिस इज यू नो समथिंग दैट डजंट मेक फॉर ग्रेट रीडिंग. It is a humiliation. Yes. Humble हुई है Pakistan. बेशक. There are no two ways about it. There are no defenses. There are no excuses. You cannot hide behind this performance. But then again, I'm not too fussed about it. Yeah, I mean, I think अब पता नहीं उन्होंने क्यों किया ये, लेकिन मेरे लिहाज से बैटिंग फर्स्ट, ट्राई योरसेल्व्स आउट. आई एम नॉट टू फस्ट अबाउट दैट. So I don't think that they did that to test themselves. मैं इसीलिए बोला ना, Yeah. मुझे नहीं पता कि क्यों किया. हाँ, I'm लेकिन convinced. हो गया तो अच्छी बात ही. I am completely convinced कि they never thought that dew would come around. And they और फिर I don't know, they didn't read the pitch perfectly. नहीं, this was a different track by the way, Sadi. This was a bouncier Yeah. track, जो कि साउथ अफ्रीका तो कोई मसला नहीं हुआ उनको. They're used to playing on Yeah. bouncy tracks. Pakistan, albeit, they really struggled. They lost 3 quick wickets. वो भी तीनों senior batters. Burger bro. Yeah. Nondre Berger. Yes, I mean, sir. what a performance आते हैं उसके ऊपर. But generally, अगर themes of the game पे जाएं, तो Pakistan failed across all 3 facets of the game. Yeah. They were underwhelming with the bat. They dropped 3 catches in the field. Very poor in the ठीक field. है? Yes. For that is happening in isolation over Yeah. here, क्योंकि वरना overall fielding बहुत solid रही है. और And then, bowling की तो बात ही ना करो bro. other than Vaz Junior, all the bowlers shat the bed. Vaz Junior खेल रहा था bro. खेल रहा है, बड़ी बात है. ये खेल गया है, बड़ी बात है. We got to see Vaz Junior again before GTA 6. देख लो बस फिर तुम Vaz कैसी Junior जिंदा था bro. yeah tie in किए चीजें. But look, I get that Dew was, you know, quite prominent और मतलब समुंदरी बन गया था. Yeah. But despite Dew, you lost the game in 40.1 overs ना. आपके पास 270 runs थे. You basically made it look like कि 350 भी होते तो कम थे. Yeah. Right? हाँ, Essentially. ऐसे ही आराम से Yeah. चेज हो रहा था. 350 तक तो खैर हमने पहुंचने नहीं था कभी भी नहीं. सवाल ही पैदा नहीं पहुंच होता. भी जाते थे वो 42 ओवर में, 42 नहीं 44 ओवर में चेज कर हाँ. वो खेलना ही है. 350 को 44 में ना कर लेते ब्रो. 300 को तो कर लेते. वो और मारते. Yeah. हाँ. I mean, look. अभी तो उन्हें था ना 270 ही चेज करना. हाँ. आराम से करते हैं. Yeah. I mean, and I think कि थोड़ा सा फाइट बैक बुरा नहीं था बैटिंग में, बट ओवरऑल आई वाज वेरी अंडरवेल्म्ड विद द बैटिंग, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी है ही नहीं. ठीक है यार, थोड़ा बॉल बाउंस अगर ज्यादा कर रहा है सादी, इफ दिस ट्रैक हैज अ बिट मोर बाउंस इन इट, यू आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. इनफैक्ट आपको तो ट्रू बाउंस फेवर नहीं करता था. फेवर तो करता है. सारे यही कहते हैं यार, थोड़े से ट्रू बाउंस मिले तो हमारे बैटर्स खेल जाते हैं. देख लिया कि क्या हाल हुआ. ठीक है, कल फर्स्ट इनिंग्स के अंदर यू सॉ दैट द आउटफील्ड वाज अ बिट स्लोअर देन बिफोर. देयर वाज दैट. इट वाज अ बाउंसियर ट्रैक, दिस वन, विद अ बिट ऑफ परचेस फॉर द सीमर्स इन द फर्स्ट इनिंग्स स्पेशली.
ठीक है, बट पाकिस्तान नहीं, तो वही ना हमने लास्ट टाइम बोला था, पिच पाकिस्तान पे आप नहीं कर सकते कि किस तरह की खेल बिल्कुल। रही है। You cannot judge कि पाकिस्तान किस पिच पे खेल रही है। बट यू कुड सी फ्रॉम योर आईज कि बर्गर और बॉश को बहुत बाउंस मिल रहा था, द बॉल वाज राइजिंग। तो मेरा पॉइंट यही है कि फर्स्ट इनिंग्स में या सेकंड इनिंग्स में नहीं कर रही, ये हम जज नहीं कर सकते। फर्स्ट इनिंग्स में डेफिनेटली कर रही। बट दिस वाज अ बिट मोर बाउंसियर ट्रैक था इस तरह का, एंड स्पेशली विद द न्यू बॉल देयर वाज मोर परचेस फॉर द सीमर्स। आल्सो सादी, दिस सरफेस डिड नॉट टर्न एज मच एज द प्रीवियस वन। यस सर। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाली बॉलिंग इनिंग्स में भी उतनी प्रोमिनेंट टर्न नहीं थी, यू नो, द बॉल वाजंट ग्रिपिंग लाइक द अदर डे, एंड देन ऑफ कोर्स ड्यू कम्स इन द सेकंड इनिंग्स, पाकिस्तान वहीं लेट गया था। जब मुझे पता चला कि ये तो ड्यू आ गई है, मैंने कहा मैच खत्म है। उसके बाद ऑफ कोर्स व्हेन यू ड्रॉप 3 चांसेस, you know, Naseem Shah, he dropped Luandri Pretorius on 18 off his own bowling. वो देखो ना, कंपैरिजन करो जो कॉर्बिन बॉश ने कैच पकड़ा था साइम अयूब का, वो भी मुश्किल था, वो लो था, वो ज्यादा मुश्किल था इससे, कई दर्जे ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, so he drops Luandri Pretorius off his own bowling when Luan was on 18, वो 46 बनाकर गया 40 पे। मोहम्मद नवाज, who is such a safe fielder, he doesn't drop many, he also drops Quinton de Kock in the deep on 15, पहुंच गया था, पकड़ ली थी बॉल, it popped out। 15 पे आउट हो सकता था क्विंटन डी कॉक, he was unbeaten on 123 of 119 balls. Yeah, 22nd century for Quinton de Kock. Yeah. Comeback पे, मतलब second ODI since his comeback, and he scored a century. उसके बाद another reliable fielder in Rana Fahum. Rana ji, very good in the deep, doesn't drop many. He drops Tony DeZorzi when he's on 54, वो भी 76 मार गया 63 में। South Africa in comparison dropped nothing. Yeah. ठीक है, so caught some good ones as well. Yeah, your fielding let you down big time over here, but not probably as much. That wasn't the reason Pakistan lost the match. Pakistan's batting was the reason. And bowling पे भी उतना blame नहीं डालूंगा, है blame, है blame, काफी ज्यादा blame आता है, लेकिन बैटिंग में तो खत्म ही हो गया था ना। देखो वैज जूनियर, इस पिच पे 270 कर रहे हो तो क्या ही करना है। Vaz Junior was the only Pakistan bowler who looked threatening. ठीक है, he was getting that angle versus the left-handers. He was getting the ball to shape away. नहीं खेला जा रहा था. Pace was up. I feel like 147 touch किया उसने at one point. Barring him, और वो भी बेचारा unlucky as figures of whatever 1 for 48 or something, they don't reflect how good he actually was in the field. ठीक है, I feel like he was a lot better than that. उसको ज़्यादा विकेटें मिल जानी चाहिए थी. Some batters got lucky versus him, but Dizori lucky हुआ है. पता नहीं वो top of off को कैसे नहीं लगी बॉल. But the thing is कि ठीक है गीला बॉल है, but your bowling was absolute shite. बेराम, despite that, बेशक मतलब horrendous, लेकिन don't you think सही टाइम पे आपको ये सीखने को चीजें मिल रही हैं? बिल्कुल, that's why I'm not too fast. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ I'm not too fast. ठीक है, क्रश कर दिया और माना कि ऐसी साउथ अफ्रीकन टीम थी जिसके साथ पिछला मैच क्लोज नहीं जाना चाहिए था। गुस्सा उस बात पे चढ़े कि आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन मैं फिर उस बात पे आ जाता हूँ कि यार चलो एटलीस्ट कुछ हमें सीखने को शायद मिल गया हो, शायद ही है ना, इट्स अ बिग इफ, क्योंकि हम तो ऑप्टिमिस्ट होगी यही बात करेंगे। if your three most experienced batters in Fakhr, Babar and Rizwan haven't been able to adjust and haven't been able to adapt, that is concerning. I would say ज़्यादा बल्कि क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं यहाँ पे कि ठीक है, you expected the surface to play a certain way, हल्का सा यहाँ बाउंस किया, आगे पेस मार दी उन्होंने, आपके पास तो जवाब ही नहीं था। ठीक है, fastest bowler on the day was by the way Berger. Yeah, he had to be. Dude, like why wait till that point? Nandre Berger literally, was he player of the match because he deserved to be player of the match? I think he was. Quinton de Kock ने ये Berger का player of the match award था, because the way he bowled with the new ball especially, यार, I mean, in his first over he bounces Fakhar Zaman out with his third delivery. Fakhar's gone for a bronze duck. ठीक है, it caught Fakhar off guard, काफी steep bounce था. He wasn't, he should have been. ठीक है, Quinton de Kock था, हमेशा बैटर को दे देते हैं, ये बर्गर का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था, सही है। सो बाउंसेस फखर आउट फर्स्ट ओवर, देन एट द स्टार्ट ऑफ हिज थर्ड ओवर ही स्क्वेयर्स अप बाबर आजम लाइक अ ड्रीम। बॉल बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर वहां पे बाबर की भी, बाबर बाय द वे वाज स्ट्रगलिंग throughout this innings. Babar was struggling, सिर्फ जो पैड से बॉल आ रही थी, he was able to flick them. Other than that, बाबर से कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। Yeah. Ugly. He looked like a walking wicket. Ugly. As far or as long as the ball wasn't pitched on his pads. ठीक है. Ugly terrain innings थी, bro. He was squared up in emphatic fashion. Yeah. ठीक है. Berger found his edge and it was a supreme catch at first slip as well. वो देखो ना, वो तो catches पकड़ रहे। Really good. और फिर रिजवान ने आते साथ down the ground एक पंची चौका मारा है। और फिर उसके बाद पता नहीं कर क्या रहा था, लास्ट मोमेंट पे लीव कर रहा था, हिट हिज ग्लव, चॉप्ड ऑन, ग्लव नहीं, इनसाइड एज, हां इनसाइड एज, वही मतलब कि he plays on, and yeah, Nandre Berger in 17 deliveries had 3 wickets, and if you look at his first 5 overs in the power play, 5 power play overs where he took 3 for 24, Sadi, he wasn't trying something exorbitant. No. Barring the odd short ball, he kept hitting a length at pace.
मूविंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स और फिर लेफ्ट हैंडर जो फखर जमान था उसको बाउंस आउट. बिल्कुल. तो उसने कोई बहुत चीजें तो यहाँ पे ट्राई नहीं की. करने की जरूरत ही You नहीं थी. should have known कि ये करेगा क्या. He's just hitting that hard length consistently और वो आपको तंग कर रहा है, पेस मार रहा है. But credit to him for being so disciplined. Now Andre Berger hadn't performed that well in the T20 series. Now he comes and shows his skill set over here in the ODI. So 3 for 24 and 5 power play overs. उसके बाद यार post power play he actually is more economical. In 5 post power play overs he concedes just 22 runs और 24 runs नहीं 22 runs है, 46 है ना, वो टाइपो है, सॉरी. So 1 for 22 in his 5 post power play overs और उसके अंदर he does try a few things. He varies his pace. He goes for some yorkers. एक नवाज ने रोका था यॉर्कर, बिल्कुल यहाँ निकलने वाला था, पता नहीं कैसे रोका था, और फिर स्लोअर बाउंसेस भी ट्राई कर रहा था. So he showed you कि यार ये all phases में अच्छा हो सकता है, and his figures of 4 for 46 should have fetched him player of the match. We already know कि उसके पास टैलेंट तो बहुत है और स्पेशली टॉल लेफ्ट आर्म सीमर के लिए मुश्किल ही होता है बैटर को फेस करना. उल्टा बोल दिया, बैटर को मुश्किल ही होता है उन्हें फेस करना. बाबर के तो वैसे ही स्ट्रगल्स आपके सामने थे पीएसएल में. He kept getting out to left arm seamers, so this was always going to be a matchup in favor of Andre Berger. ठीक है, सारे मैचअप्स ऊपर से यार I don't want to spend too much time on Babar Azam because he's an afterthought once again. ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, ओपन स्टांस फीड गोइंग नोवेयर, ये बाबर नहीं था जो अब हो गया बस. और पता नहीं यार, I don't even know कि मतलब, look, the mental element of this is all obviously true. That's true for all human beings. But over here he's been found out. ये तो serious lack of technique थी bro. Technical deficiencies आ गई हैं. He's not spending time out in the middle in red ball cricket at all. I don't feel like he's doing his due diligence. जो एक प्लेयर को जितना मार्नस कर रहा है, look at Marnus. Doing himself no favors. उसने 5 hundreds लगा दिए. He's a sure shot starter in the first test match. We don't know Ashes में वो ओपन करेगा अभी कि वो फर्स्ट ड्रॉप आएगा. I don't think ओपन करना चाहिए. बेली ने वैसे इस तरह की कोई बात की है. But I think Weatherall से ओपन करें, Marnus first drop, and then Webster और Cam Green में से एक खेले. I don't know why we're talking about this. Ashes preview आएगा. Yeah. But point is कि यार, now he had 6 ODIs in front of him. ठीक है, 2 गए. He scored 18 runs across 2. 7 and 11. Well, 7 and 11. ठीक है. So मसला ये अब आ गया है कि Babar Azam has not scored an international 181 innings. ठीक है, across all formats. और दूसरी बात ये कि yesterday he looked completely at sea. मैं इसीलिए तो मैंने बोला. और क्यों नहीं था ये जो है. You should know exactly what Berger is going to try. वो कोई, he's not playing mind games. वो बल्कि बाद में in 5 post power play overs he's keeping batters guessing. उससे पहले तो he's not. He's test line कर रहा है. Taking nothing away from Berger, it was a good delivery, but Babar बहुत ही amateur stuff में out हुआ. Both of those guys, Bosch and Berger, were bowling test lines and lengths. Bosch, bro. Bosch भी, I know the figures don't reflect it, मगर शुरू में runs नहीं हो रहे थे. बिल्कुल हो ही नहीं रहे थे. Bosch पे कोई runs नहीं हो रहे थे. वो 2 for 58 is not great, but he's just been so good versus Pakistan, right? So ठीक है, full credit to Andre Berger, he was my player of the match, but यहाँ पे question mark. चलो फखर को जल्दी bouncer पड़ गया, bounce out हो गया, उसके पिछले मैच में runs आए थे, whatever. रिजवान, I had no idea कर क्या रहा था. My God. Yeah, I have no clue. ठीक है. Terrible. हाँ, El Terrible. And then Babar Azam again, like that knock that comes in the third T20I is in isolation right now. हमने तब भी शायद ये बात की थी कि I would like to see this become more repeatable and then we can get excited. अभी for now it's just a knock in isolation and he needs to change that quick. Yes, sir. 4 और ODIs बच गए सादी. He needs some scores. He does. Number 32 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? जानीज 96 हो गए. 96 जानीज हो गए, 4 रह गए हैं. बाबर सैटरडे को कर दो. उससे पहले 4 जानीज हो जाने, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जानीज बन जाना. हाँ, I never thought it would get this close. ठीक है, या तो मुझे लग रहा था कि overwhelmingly जानीज उड़ा देंगे. ये कोई 80s में थे हम, तो हमने स्टार्ट किया था ये वाला. देख लो फिर वो किस रफ्तार से जानीज बढ़ रहे हैं, मगर नंबर 32 अब आ नहीं रहा. एजाज को लग रहा है कि आ जाएगा. यार वो तो हर दफा ही लगता है एजाज को. एजाज हर मैच से पहले आ रहा है. यार ट्रूथ बी टोल्ड, प्रीव्यू के अंदर मुझे और तुम्हें भी लग रहा था कि बाबर के रन्स आ रहे हैं, क्योंकि T20 में स्कोर आ गया था. और मुझे लग रहा था कि बैटिंग डेक से होंगे, जो कि बाय द वे दिस डेक, इवन इफ इट वाज स्लाइटली बाउंसियर, it wasn't difficult to bat on. It wasn't difficult to bat on. Even in the first innings it was more so a batting deck, क्योंकि the spinners weren't getting enough purchase and you weren't proactive enough. Why is Donovan Ferreira going for 40 runs? Donovan in 10 overs. Why? Beyond 14. उसको तो लेफ्टी भी नहीं लगे हुए थे सवाए साइम के. साइम फिर बेहतर खेल रहा था उससे. सोचो तुम जरा इस बात को. तो अडेप्टेबिलिटी इन बैटिंग आर पाकिस्तान्स बिगेस्ट वीकनेसेस. ये अकीलीज हील बन गई है रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट. ठीक है, वहां पे टेस्ट मैचेस में 3rd इनिंग्स आए तो आपसे बैट पकड़ा ही नहीं जाता, राइट?
We need like a compilation of third innings fuck-ups by Pakistan at this point. Batting fuck-ups. Yeah. Regardless of the innings, bro. नहीं, और फिर वो आकर कह रहे हैं सलमान अली आगा, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ड्यू में चेस किया ना 270, ठीक है, they were going to win, they were going to chase 270, but they chased it down in 40.1 overs. With 8 wickets in hand. Also look at the way they paced their innings. 65 for none in 10 overs. Yes. 125 for 1 once again in 20. 30 overs का पता है क्या स्कोर था? 213 for 1. The game was done. Oh, obviously. They were cruising. वो भी मुझे लगता है 10 ओवर ज्यादा खेल गए. Exactly. वो चाहते तो वो 35-36 ओवर में मुका सकते थे, वो 400 भी मार सकते थे यहाँ पे अगर वो वाकई चाहते. So यार the point over here is कि एक जगह आपको नजर आ रहा है कि दुनिया अडेप्ट कर गई है मॉडर्न डे क्रिकेट पे, दूसरी तरफ आप आकर मॉडर्न डे क्रिकेट वाली बातें कर रहे हो, but your words aren't matching your actions. You are not proactive enough. You cannot rotate strike. जरूरी थोड़ी कि चौके छक्के मारने यार, सिंगल डबल्स भी तो होते हैं. ठीक है, सलमान अली आगा वाज गुड, लेकिन ब्रो माय गॉड 24 बॉलों में 4 रन थे कजन सहल के. स्नूज फेस्ट ब्रो. 4 ओवर्स के अंदर उसके 4 रन्स थे, 1 रन पर ओवर. इतना कोई सरफेस के अंदर ग्रेमलिन्स नहीं थे, as Amir Sohail likes to put it. Amir Sohail likes to put. हाँ, वरना हम सारे तो demons कहते हैं. But I wonder who would win between demons and gremlins. I don't know, bro. Yeah, this needs to be studied. What's the difference between the two? Demon वो है ना demonic creature. और gremlin. Gremlin I think वो कोई वो जानवर है. तो फिर demon. हाँ, probably demon जो है ज्यादा खतरनाक होगा. आप लोग भी बताना, we'd love to know your take on this. But yeah, look, माइन सोशल मीडिया में पोस्ट लगा दो, Yeah. पोल लगा दो. वैसे तो 20 ओवर्स में जब वो 125 for 1 थे तभी मैच मुक गया था. पर देखो ना 30 ओवरों में जाकर वो कितना नुकसान करते हैं आपका. ब्रो 65 for 0 पे ही मुक गया था मैच. वहां से मैच तो वहीं पे मुक गया था ब्रो. ट्रूथ बी टोल्ड, ऊपर से जब आपने 3-3 कैच छोड़ दिए, Yeah. you're not helping yourself, are you? I mean they were 65 for 0 in their first 10. पाकिस्तान के तरफ 41 for 3. अच्छा चलो मैंने माना यार 3 विकेटें गिर गई, कंसोलिडेट करो 41 for 3 in 10 overs, fine. Why are you 85 for 3 in 20? आपकी विकेट भी नहीं गिरी सादी यार. How have you scored 44 runs in 10 overs without losing a wicket? वो भी जब बैटिंग अभी इजी है. इवन अगर हम पुराने वाले उस स्केल पे चले कि first 20 overs are good for batting, जो तब तक मुझे वही लग रहा था. मुझे तो This was a different pitch though. I don't think पिच इतनी मुश्किल नहीं थी. थी. न्यू बॉल के साथ परचेज थी, उसके बाद नहीं थी. देख लो ना. Yeah, spinners को भी कोई इतनी परचेज नहीं मिल रही थी. I उस दिन mean, the ball was turning square in the first ODI. I didn't see it turn square in the second, for instance, right? It wasn't that hard. Yeah. Wasn't a minefield by any stretch. So 20 overs में 85 for 3 हो, चलो यार आप कहते हो अच्छा लंबा कंसोलिडेट कर लिया, अब एक्सेलरेट करेंगे. नहीं करते. 30 overs में 131 for 5, 46 runs scored, 2 wickets lost. उसके बाद भी next 10 over stretch में at 40 over mark, Pakistan was 179 for 5. So they've once again scored 48 runs in 10 overs for the loss of 0 wickets. आप 5 का run rate नहीं कर पा रहे maintain. That is really piss poor. That is Hugo Pathetic. ठीक है. अब आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दी है 179 for 5 and 40 overs कि even if you wish you can't get to 300. You do well, by the way. In the last 10. In the last 10 they were really good, yeah. नवाज के लग गए, सीमो भी आके छक्का मार गया, वैस जूनियर की 2 बाउंड्रीज. हाँ, और राणा जी की भी. राणा जी की भी. वो सब कुछ कर गए, फिर भी you scored 90 runs for the loss of 4 wickets in the last 10 overs. That takes you to 269 for 9. You set South Africa a target of 270 runs, जो कि अगर ड्यू ना आती you could have perhaps competed. मैं ये नहीं कह रहा आप जीत जाते, you could have perhaps competed. यहाँ पे तो आप जिस मैनर में हारे हो, the way you got blown to shreds by their batting, I mean look, there's a lot of soul searching to do, but तुम्हारी वाली बात भी ठीक है कि बेहतर है गलतियां भी आए. 138 for the loss of 2 wickets in 30 overs post power play. That's what Pakistan did up until the 40th over. That's shit. That's really bad. That's really bad. That is like basically 92 की क्रिकेट. Yeah. यही है ना. मतलब this is in 2025. Big 2025 में 138 runs in 30 overs in the middle overs. For the loss of 2 wickets. या तो विकेट रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रही होती, मैं मान लेता. Exactly. There are 2 10 over stretches over here जिसमें विकेट गिरी नहीं. आप फिर भी 5 की रन रेट पे स्कोर नहीं कर सके. What is that telling me? कि आपने जो ये शोशा लगाया हुआ है कि हम जी मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, we'll have to be braver, अगर हम नहीं करेंगे हमारा हॉकी वाला हाल हो जाएगा. क्या है ये? यार थोड़े से ब्रेव हो जाओ यार. थोड़े से तो ब्रेव हो जाओ. दिलेरी दिखा दो हल्की सी. अच्छा जल्दी आउट हो जाओगे ना. हार तो इस तरह भी गए हो. हार नहीं गए. प्रोलॉन्ग कर रहे हो अपनी इमिनेंट डेथ को. ये ऐसे हार नहीं बोल. खैर अगेन दे हैड नो आइडिया ड्यू आएगी, क्योंकि अली भाई मुझे बता रहे थे कि ब्रीज चल रही थी बहुत स्ट्रांग, एंड जनरली ब्रीज में नहीं आती, मगर आ गई. ठीक है, मान लिया. I don't think they were trying to test themselves. जो तुम्हारा लॉजिक है ना कि नहीं मैं खुश हूं कि उन्होंने बैटिंग पहले की है. मैंने लॉजिक नहीं दिया. गलती की है क्योंकि उनको पता ही नहीं था. मैंने लॉजिक नहीं दिया. मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने ट्राई करने के लिए बोला. मैंने कहा हो गया है, जिस तरह भी हुआ है, आई वाज हैप्पी विद इट. ऊपर से इनकी किस्मतें चेक करो यार. थ्रू आउट दिस एंटायर साउथ अफ्रीकन टूर जो आए हुए हैं वो यहाँ पे खेलने, पाकिस्तान हैजंट लॉस्ट अ टॉस.
सारे टॉस जीते, सारे 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान विन द टॉस, 3 T20Is they and win 2 and 2 ODIs. एक मैच रह गया साउथ अफ्रीका के लिए, या जितवा दो उन्हें भी टॉस है। रोहित शर्मा की रूह चली गई है उनकी कप्तानों के अंदर, टॉस ही नहीं जीतने को टॉस आ ही रहे। नहीं, वो भी या, कुछ 16 टॉस इन रो हारे थे ना इंडिया, ऐसा ही कुछ था वो भी। The probability was in 0.0 ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है, 0.00 नहीं होगा, ऐसा ही था ब्रो, ठीक है, ऐसा ही था, थोड़ा ज्यादा खींच के हो। नहीं ऐसा ही था 0.00 समथिंग। Some math kid over there tell us कि 7 हो गए ना, हाँ 7 नहीं ये वाला नहीं, उनका 16, इनका 7 हो गया ना, इनका 7 हो गया। I cannot remember the last time I saw a tour जिसमें टॉस ही अगली टीम ना जीती हो अक्रॉस फॉर्मेट्स, क्योंकि फुल टूर्स तो होते नहीं है, एक फॉर्मेट वाले टूर होते हैं। बट एनीवे, साउथ अफ्रीका haven't won a toss yet in this series, which is remarkable, and yet they are here. They've leveled the test series. They lost the T20I series, but चलो वो भी आप ये भी कह सकते हो ना कि उनको भी टॉस भारी पड़ गया, वहां पे ड्यू आ गई लाहौर वाली मैचेस में, ठीक है। और पाकिस्तान ने बाय द वे 140 का टारगेट चेस किया था 19 ओवरों में, दे वन बाय 4 विकेट्स विद एन ओवर टू स्पेयर। तो जब आपको ड्यू का फायदा भी मिलता है तो यू नो क्या कहूंगा मैं, अब बोलूं क्या, कुछ भी नहीं बोल सकते। यू आर गोइंग एट अ स्लगिश रेट। अब देखो ना, साउथ अफ्रीका टुक द ब्रेवर कॉल बाय मेकिंग 2 चेंजेस एज वेल। पाकिस्तान ने भी 2 चेंजेस किए, लेकिन साउथ अफ्रीका सैक्रिफाइस पेस फॉर स्पिन। देखो ना, या दे एंड याबा एंड कैसे करना, एंड काबा नहीं आता वो बस है ना, काबा हाँ यौमजी पीटर, वो तो वैसे नाबा पीटर कह रहा था, नहीं शुरू में उसने पूरा बोला था, किया था उसने। खैर, his name is Nkaba Yomzi. I think he just wanted to make it easier for himself. नाबा पीटर बोल दो। हाँ, I suppose. लेकिन योमजी ने बोला ना, मजा नहीं आया। या योमजी के बगैर उस नाम का वो शशका ही नहीं है। It has to be Nkaba Yomzi. आ गया ना ब्रो, पीटर, ठीक है। Brave call? Yeah. So a bit of a stupid call by Bradeska to give him the death overs as well. I mean, look, he does all right. Don't get me wrong. उसने 3 for 55 लिए 8 overs में. I didn't mind him at all. आखिरी ओवर में 22 रन पड़े थे उसे। वही ना, आखिरी ओवर में 22 रन पड़ गए। That was, देखो, वो हैंडीकैप उनको ब्रीड्स का भी कर गया कप्तानी में, वरना आपके 270 भी ना होते। नहीं हो रहे। You weren't getting there. You weren't posting a target of 270 if or had Nkaba नहीं हुआ सही। Nkaba Yomzi Peter not bowled those 2 overs at the death. Despite that, 3 for 55 was all right, but Breeds की गलती वो थी. That was a bit of a, howler, yeah. And that allowed Pakistan to get to 269. So कल जल्दी भी मैच खत्म हो सकता था। Yeah, I mean, look, बिल्कुल हो सकता था। मैं तो बल्कि सोच रहा था कि अभी तक खत्म हुआ। After the 30 over mark, I was like, how has this game gone to 40 overs? चल रही है। Yeah. Anyway, so as you said, both teams make 2 changes each. Yeah. Perhaps the only thing that I was satisfied with Pakistan yesterday was कि Vaz Junior खेल गया. But तुम्हारी वाली बात जो हम अभी off camera बात कर रहे थे, playing both of Vaz Junior and Rana for whom is probably not a good call because now you are limiting your spinners on these surfaces. हाँ. I still think spin का रोल था थोड़ा सा इसके अंदर। पाकिस्तान ने देख लो ना उनके ड्यू थी। खैर वो तो एंड पे होगी ना, आपको क्या पता था कि आप टॉस जीत रहे हो या नहीं। अगर ड्यू आती ना, and Bond Fortin conceded 40 odd runs in their 10 over spells. सिर्फ लिंडा नहीं चल रहा ओडीआईज में, वो उसने 2 ओवर ही करवाए। अच्छा, उसको ओडीआईज में अटैक करते हैं मगर T20s में उसके खिलाफ रन ही नहीं होते। पता नहीं इनका भी सिस्टम मुझे समझ नहीं आता है। They see a slow left armer and they start like crapping their pants. And Bond Fortin तो खैर पहले ओडीआई में भी नहीं खेला गया, मगर डोनोवन फेरेरा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करा रहा था। क्या खैर पाकिस्तान की जहां तक बात है, I wouldn't have brought both of them in. You're right over there. Either Vaz or Rana, for whom I would have played a spinner. अबरार की जगह बेशक फैसल खिला लेते, लेकिन स्पिनर खिला लेते। हाँ, आप थोड़े ब्रेव अगर हो तो नवाज को साथ पे बैटिंग कराओ फिर और खिलाओ। अब तो देख लो ना, he can play at 7. Yeah. He definitely can. और नवाज is a good number 7. और फिर हसन नवाज को निकाल दिया। हसन नवाज को निकाला क्योंकि तल्लत को एक और गेम मिली है और तल्लत भी अपने मौके नहीं ले रहा। I mean, opportunity मिली है। हुसैन तलत को should have grabbed it with both hands. उसने एक हाथ करीब भी नहीं पहुंचाया। नहीं, उसका तो एक चौका भी बड़ा जलील सा था। बिल्कुल भी कन्विंसिंग क्लिप टू फाइन लेग नहीं थी वो। मुझे मजा ही नहीं आया उस चौके का। हालांकि उस पिछली वाली इनिंग्स में shit knock but a good couple of boundaries, But this was just bad and Pakistan, like, look, I feel कि they loaded up their pace bowling options and they limited their spin bowling options. Maybe अगर ड्यू ना आती तो रिवर्स स्विंग पे आप शायद पकड़ सकते थे। बट देन अगेन साथ वाली बात ठीक है, बैलेंस तो रखो। आपको पता तो होना चाहिए ना, प्लान तो आपको इसी तरह करना चाहिए। हाउ आर योर ओनली 2 spinners नवाज एंड साइमन, और आपको पता होना सलमान अली। खैर वो भी आपको प्लान तो इसी तरह करना चाहिए ना। अगर डे नाइट मैच है और आपको पता है कि अब इस मौसम में ड्यू आती है,
आ गई सेकंड बॉलिंग तो आ सकती है ड्यू. Yeah. जरूरी थोड़ी है कि ब्रीज चल रही है तो ब्रीज रुकेगी नहीं. ऊपर से आई एम क्वाइट कन्विंस्ड दैट दिस वाजंट द सेम स्ट्रिप. It wasn't the same strip. Yeah, it didn't behave the same way. बिल्कुल फर्क थी. Different pitch. ठीक है, और ड्यू थोड़ा सा मजा खराब करती है ओडीआईस का, बट देन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. जितनी भी कोशिश कर लें लोग, वो रस्सियां या रोप्स लेकर आते हैं, सुपर सॉपर्स आते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, आज तक ड्यू का कोई तोड़ नहीं मिला. ड्यू का तोड़ है ही नहीं. तो ये है पार्ट ऑफ द गेम. उसी तरह पार्ट ऑफ द गेम है जिस तरह कभी कभार आपको मॉइस्चर मिल जाता है फर्स्ट इनिंग्स में जो बॉलर्स को हेल्प करता है. इट्स फाइन, दिस इज क्रिकेट. नो अदर स्पोर्ट इज एज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड वेदर एंड कंडीशंस देन क्रिकेट इज. ठीक है, you need to plan for them. You need to plan for them, you need to be able to adapt them. ये नहीं कि हल्का सा बाउंस आया आप ही फारिग हो गए. बाउंस आया, हल्की सी ड्यू आई, you've got an excuse कि ओके इसमें तो बॉलिंग हो ही नहीं सकती. नहीं है यार, अगर आपने फाइट की होती, क्लोज जाकर हारते तो फिर जरा डिफरेंट बात होती. ऐसे देखो ना, अगर बैटिंग की बात की जाए तो लोअर मिडिल ऑर्डर ने आपको इस पे पहुंचाया, और ऊपर से चलो सलमान अली आगा सेव्ड यू. साइम अयूब वाज लुकिंग गुड. साइम अयूब वाज लुकिंग ग्रेट. आएंगे हम उनके ऊपर. दैट्स इट. बॉलिंग में देखो तो एक वैस जूनियर वाज लुकिंग ऑलराइट, और कुछ नहीं. फील्डिंग वाज पैथेटिक. या आई मीन इफ यू ड्रॉपिंग 3 catches out of 3. खैर out of 3 तो नहीं, they probably probably 3 catches dropped. 3 catches dropped in 40 overs. That's bad. That is bad. And कोई इस तरह के chances नहीं थे bro. ना आ गई थी हाथों में बॉल. At this level those catches should be taken. और चलो एक ड्रॉप हो जाता है, 3 ज्यादा हो जाते हैं. यही वाली चीज है. ऐसे ही मैक्सिमम 2. ठीक है, हम पिछले मैचेस में एक आधा ड्रॉप हो रहा था, बट वी वर लाइक नहीं, ओवरऑल फील्डिंग इतनी अच्छी, वी वोंट टॉक अबाउट इट. ग्राउंड फील्डिंग वाज गुड कैचेस टेकन एज वेल. एक आधा कैच ड्रॉप तो हर कोई कर देता है. अभी भी मैं कह रहा हूं कि दिस आई विल लुक एट इट इन आइसोलेशन, बिकॉज़ अनलेस अगले मैच में भी ये करें तो ट्रेंड सॉलिड है. तो ये वाले मैच को मैं नजरअंदाज करता हूं. चलो यार, ड्यू आई, बॉलिंग आपकी नहीं चली, इवन दो आई फील लाइक इट वाज स्टिल शिट. खैर है, आपकी फील्डिंग एक मैच में फेल होगी, बट इट्स इन आइसोलेशन. जिस तरह बाबर आजम का नॉक इन आइसोलेशन है, उसी तरह फील्डिंग इन आइसोलेशन है. ठीक है, एसेंशियली राइट. खैर है, मगर बैटिंग में यार आप कब तक स्ट्रगल करोगे इतना ज्यादा? हाउ आर यू गोइंग एट स्नेल स्पेस इन बिग 2025? आपको क्या पता नहीं है कि अगर हम 40 ओवरों में 200 तक भी नहीं पहुंचेंगे, दिस गेम इज डन. अच्छा, बिग 2025 की तुमने बात की है, उससे मुझे याद आ गया कि फैसलाबाद में क्रिकेट रिटर्न हुई है. अनदर हाउसफुल ब्रो. यार जबरदस्त. कल तो वो वाला सीन भी नहीं था ना कि वो बाबर आउट हो गया, वो तो आते सारी आउट हो गया. क्योंकि वो जब तक फैंस घुसे हैं स्टेडियम में तब तक आउट हो चुका था. जब पहुंचे ही तो उन्होंने कहा कि वो बाबर आउट. और उन्होंने दिखाया था बर्ड्स आई व्यू दिखाया था, जब बाबर आउट हो चुका हुआ था तो लोग अभी आ रहे थे, लाइनें लगी हुई थी, वो लोगों के साथ हैंड हो गया. बट लुक, पिछले मैच में ये बात हो रही थी कि देखो बाबर आउट हो गया, लोग चले गए. इस दफा नहीं ऐसा हुआ. बहुत ज्यादा मैच पड़ा हुआ था इस दफा तो ब्रो, बहुत ज्यादा ही पड़ा हुआ था. फैसलाबाद के जो जिंदा दिलाने मंचले हैं, ठीक है, मंचले का सौदा देखा हुआ तुमने? नहीं. जक्को जो है ना, एक दफा मुझे कहा था कि पीटीवी का एक ड्रामा है मंचले का सौदा, आओ देखते हैं. पहले 2 एपिसोड देखने के बाद फारिग हो गया. मैंने पूरी चीज देख ली. अजीब वक्त जाया हुआ मेरा, मगर उसका गाना बड़ा फिट था. क्या? मेरे मंचले का सौदा है खट्टा और मीठा. शक्ल ये बनाने की कोई जरूरत नहीं. और मीठा. ये नवा सुर पकड़ ब्रो, वो बड़ा फिट स्टार्ट लिया था, साइंटिफिक आदमी था, वो पता नहीं पीर बन जाता है एंड में. He dies. अच्छा, उसका मजार आ जाता है. अच्छा, ठीक है. I was like, क्या हुआ यार मंचले का सौदा? अच्छा, सही है. जक्को, I hope you watch this show. खैर, बात हम फैसलाबाद के. गुड यार, गुड ऑन यू फैसलाबादियों. आप आए हो, आपने फिर स्टेडियम भरा है, मजा आया. शुक्र है स्मॉग थोड़ी कम थी. शुक्र है वो अजीम भाई ने सुबह एक तस्वीर लगा दी थी, क्लियर डे इन फैसलाबाद. मैंने कहा आज तो स्मॉग का नामो निशान ही नहीं है. वो शायद जो हवा चल रही थी वो ले गई है, स्मॉग को साथ ले गई है. बट लुक, जहाँ पे स्मॉग कम थी और क्राउड काफी देर तक भरा हुआ था, वहां पे मैच ही फारिग हो गया. पाकिस्तान ने काम पूरा कर दिया. दे शैट द बेड एंड देन लेट इट ऑन फायर. कुछ परफेक्टली सब कुछ अलाइन हो सकते हैं कभी नहीं. वो मुश्किल है. फीवर ड्रीम थोड़ा ज्यादा मांग गया. थोड़ा अपने हद में रहकर मांगा करो ना. ठीक है. एनीवे, सो द ओनली थिंग दैट पाकिस्तान प्रॉब्ली गेट्स राइट इज अ कपल ऑफ चेंजेस. वो भी, उसमें भी कैवियट है कि वैस जूनियर और राणा फॉर्म को दोनों को साथ नहीं खिला सकते. एक को खिलाते और आई वुड played Hassan Nawaz. मैंने तो ये भी बोला था कि the braver move would be to give फैसल अकरम a debut. वो भी नहीं हमें देखने को मिला, क्योंकि देखो अब तो नहीं मिल रहा ना. नहीं अब देखना, वो जो मैंने पहले भी बोला था कि 2 मैचेस शुरू के जीतेंगे तो आपको हसीबुल्लाह, फैसल अकरम ये लोग नजर आएंगे. वैस जूनियर पे मैं फिर थोड़ा वो था कि इस दफा फास्ट बॉलर्स उतने हैं नहीं टीम में, तो शायद मिल जाएंगे. बट क्योंकि मैं इतना खुद डिसहार्टन हुआ था, और हारिस रऊफ was banned, so हारिस रऊफ is banned. ट्रू. अब तो हो गया ना. हाँ, अब क्लियर हो गया. कोई पता नहीं हारिस रऊफ ही खेल रहा अगला मैच. चांसेस आर हारिस रऊफ खेल रहा हो बल्कि अगला मैच. सो क्या शाहीन तो खेलेगा ही खेलेगा. Maybe they rest Naseem. That's probably the right thing to do.
लेकिन नहीं, I wouldn't play Haris Rauf. Rauf नहीं, Vaz Junior, Naseem, and then I would still Vaz Junior, Shaheen and Rana ji. हाँ. And then bring in Faisal. Faisal नहीं खेलेगा, Abrar ही खेलेगा, yeah. That's probably what they should do. And bring back Hasan Nawaz for Hussain Talat. Yeah, do that as well. Why not? वो बेचारा अजीब जाया ही हो रहा है. Preview भी चले गए हैं हम. हाँ. हसन नवाज तो टोटल इन लोगों they failed him. बातें बड़ी बड़ी कि हम मैच विनर बनाना चाहते हैं. मेरी कप्तानी का फेलियर होगा सलमान अली आगा कि वो मैच विनर बने. खैर, this is not his format. Shaheen is captain. But I mean, Hasan Nawaz was such an exciting project. Mike Hassan पे तो आती है ना बात. वो तो है ना. They're botching the project. Yeah. ठीक है, वो जाया कर रहे हैं. ठीक है, वो कभी फेल भी होगा. ये नहीं कह रहा वो गंदा स्टंप हुआ था, बट वो भी यंगस्टर है, वो भी डेवलप करेगा. यंगस्टर बहुत अरसा हो गया था ये यंगस्टर नहीं किया था ब्रो. टाइम देना होता है. ठीक है, यू हैव टू लेट देम फेल अ बिट एज वेल टू फाइंड देयर फीट, एंड ही डिड शो सम पॉजिटिव साइंस इन द वेस्ट इंडीज, राइट? टरूबा के अंदर अच्छा था. दो इनिंग्स थी. एक इनिंग तो मुझे याद है, मुझे दूसरी 2 good games out of 3 is what I remember. ठीक है, खैर ओडीआई तो अभी शुरू हुआ है उसका. But our expectations of Pakistan cricket are a bit too idealistic. हाँ, मसला ये है. We recognize that. हम आपके सामने इसलिए आकर बातें करते हैं ताकि आपको पता हो कि कम से कम कोई ये सोच रहे. मसला ये उनका नहीं है, मसला हमारा है. हाँ, हम गलत है. बिल्कुल. या जिस तरह वो अली तरीन नहीं बोला था कि मसला मेरा है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ. नहीं इजी हो जाओ. होपफुली देखते हैं वो भी कोई कल्मिनेशन पे अच्छी पहुंचे. कुछ हो ही जाए. आई फील के रुकी हुई है चीजें. दैट सिचुएशन हैज ओनली गॉटन एग्जैसरबेटेड फर्दर. आई मीन, ट्रूथ बी टोल्ड, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू गो दैट डायरेक्शन. मैच पे आ जाओ. तुम मैच विनर हो. मैच विनर जो बनने थे वो बने नहीं. लेकिन एक बॉय है जिसने मुझे वापस थोड़ा सा इम्प्रेस किया था. सयाम अयूब विद द बैट. सयाम अयूब. देखो, तुमने खुद अपनी गलती कर दी है. बट या आई लुक, डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरे एंड पे विकेट गिर रही थी, सयाम अयूब्स पेस वाज गुड. He was good. Some delectable cover drives and cover drives versus pace and spin. Yes, तो ये बड़ी जबरदस्त बात थी. Actually, I feel like his spin game has really improved. बहुत बेहतर हो गया है. बुरा तो कभी भी नहीं था वैसे स्पिन गेम. मगर वही वाली बात है कि अगर ये फर्स्ट ड्रॉप पे T20 टीम में हो तो मैं फिर भरोसा कर लूं. बाबर पे मुझे डर लगे. और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाता है ना छक्के. Yeah, that 6 up and over extra cover was just probably his best shot. एक उसने बड़ी एक अजीब सी awkward hook या pull मारी थी. रास्ते से हट रहा था but found the fine leg fence and then he was sweeping. He rocked back and cut as well. That was a very attractive 53. गलत टाइम पे आउट हो गया. हो गया. गुड कैच बाय कॉर्बिन बॉश एज वेल, जो कि वही मैंने शुरू में कंपैरिजन बताया था. नसीम डिडंट टेक हिज चांस एंड कॉर्बिन बॉश डिड. बिल्कुल. सयाम अयूब यार, पेस भी ठीक थी, विकेटें गिर रही थी, हेल्ड हिज नर्व अर्ली ऑन. खूबसूरत शॉटें खेली, अच्छा खेला. बिल्कुल. और पता है आमतौर पे में तो आपको पता है वो अच्छा है यार. आमतौर पे व्हेन यू लूज 3 early wickets in the power play, वो भी आपके 3 सबसे experienced batters, there's every likelihood that you go into a shell, which Salman Ali Agha does go into. ठीक है. Saiam Ayub didn't, and I loved that about him. So he is a minor positive from this game. ODIs में तो उसकी फॉर्म अभी तक ड्रॉप उस तरह हुई नहीं है. Another 50 for him, 53, an attractive 53. Needs to kind of go further. Job was half done. पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी यहाँ पे, तो वो उसको भी पता है. We don't need to tell him that. But look, I'm still quite excited with respect to Saiam as a prospect, क्योंकि वो वैसे ही बैटिंग तो थी ही थी, जो कि बीच में नहीं आ रही थी T20s में, मगर बॉलिंग तो उसकी अच्छी रही है. It kind of, due to his bowling, he was in the team. A sure shot starter. He's one of the first names on the team sheet because वो balance आपको Saiam Ayub से ही मिल रहा है. In fact, जो हैसन की philosophy है ना, to go with a deeper batting lineup and play both of Nawaz and Rana for who? That only works with Saiam Ayub in the team. That doesn't work without Saiam Ayub in the team, because in 3 bowler से आप फिर सोचते हो कि मैं 20 ओवर निकालूंगा. Throw in cousin Sal in that as well. Anyway, Saiam तो हमारा जानी है. साइन जानिए, आप लोग भी बन सकते हैं जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक क्या होता है, सर्वर तो पूरा डिस्कॉर्ड होता है, चैनल है या ग्रुप है यार. उसको ज्वाइन करने के लिए 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं. इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, वहां पे मिल जाएंगी. 1500 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन. उसके अलावा वैसे अगर आप लोगों ने जानी नहीं बनना, सॉरी, वैसे अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड का पार्ट बनना है तो वो फ्री है. आप आके वैसे बातें कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में. Yes, but you would have to become a Jani of the podcast if you want to talk to myself, Saad and Mahoon, exclusively exclusive. तूने चेक किया मैंने ये हाथ वाला शुरू कर दिया ताकि I can count my saves? Yeah, anyway. If you live under a rock in big 2025 and still don't have online banking, don't worry, we've got you sorted. Saad, Mahin and I, we live in Islamabad and our office and studio is located in the E11 3 Markaz, so come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए.
सादी यार मैं वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आया था, सॉरी। कर दो खोटिश पे, ठीक है। एंड per 1500 payment we will make you a Johnny the podcast for 1 month. If you give the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Johnny the podcast for 6 months per jersey. बाकी आपको पुरानी शर्त तो याद है ना, पिंक जर्सी ओरिजिनल, नोमी पायनी ग्लासेस, साजिद की ग्लासेस या उस्मान तारिक का बैंडाना, इन चीजों पे साल के लिए जानी बन जाओगे आप। उसके अलावा हमारे पोस्टर्स भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल यार, खूबसूरत तरीके। बाबर आजम का है, बाबर फैंस। अभी भी 4 ओडीआई बचे हैं, बाय द वे। इफ यू वांट द किंग टू स्टैंड टॉल, बाय दैट पोस्टर। 4 सेंचुरी आ सकती हैं। हाँ, शाहीन अफरीदी 4 फाइफर्स आ सकते हैं। बिल्कुल, कभी खरीद लो। ये वाला भी है शीनो का यार, दे कैन नॉट प्ले हिम। और बाकी फिर थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला पोस्टर हमारा, पेस इज स्पेस यार का, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, इम्मी के, वैज, वैकार एंड शेबी ऑन योर वॉल। व्हाई वुडंट यू वांट दैट? इमरान खान का बाय द वे पोस्टर बन गया है। नेक्स्ट वाले नहीं, उससे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में रिवील करेंगे। The greatest cricketer that Pakistan has ever produced. Right? There's an exciting podcast coming for you guys, by the way. Cheeky हो रही हो मैं। Cheeky तो मैं थोड़ा हूँ, I'm a bit of a cheeky bastard. But anyway, Johnny's बहुत inclusive community है। आज बल्कि बानो has joined. 96 जानीज हो गए, 4 रह गए हैं। पहले पोस्टर खरीद लो, 4 सेंचुरीज भी आ सकती हैं पहले। 96 strong. Shout out to Aravinda. Anyway. हाँ भाई। ओ तुमने राणा टुंगा की लेटेस्ट तस्वीर देखी है? मुझे पहचाना नहीं जा रहा। नहीं पहचाना जा रहा। बॉय कांटा बन गया। Health issues or shit यार, I don't know. I really hope Arjuna does well health wise and we send our best wishes to him. I don't know, health issues हैं या Ozempic है या actual workout है, I don't know. अच्छा, I'm sorry, बिल्कुल off track question है, मगर मुझे एक tweet याद आ गया जो इससे कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज का। A cricketer from any era that would boss all 3 formats, who would you pick? Imran Khan. Imran Khan is a good answer. Mark Machado from the Murali end said Sanat Jayasuriya, another good answer. Another great answer. Yeah, I think Gilly also works. Gilchrist is. I think Gilchrist is the best answer. No, I think Gilchrist है ही है। क्योंकि Gilchrist ने हमें दिखा दी कि T20s में वो कर सकता है। सनत बेचारा बहुत बुढ़ा हो गया था, कर तो वो भी सकता था। वसीम अकरम is there. Warney, Shane Warne, वो उसने T20 में किया ही है थोड़ा बहुत, but I feel like as in पहले अगर IPL जितवाया है कैप्टन तो कर ही लिया। Waz and Gilly are great answers. Sachin would have also cracked T20s by the way. He would have, क्योंकि वो तो अपने टाइम पे early 90s में ODIs में भी तेज खेल रहा था। मास्टर ब्लास्टर बना दिया था। सनत एंड लिटिल मास्टर सईद अनवर सनत। Viv यार, Viv is probably the right answer. Let's Viv is the answer. Cull this conversation over here. अच्छा जी, Viv and Imran. Not wasting time on Fakhr, bounced out for a bronze duck. बाबर की बात हो गई है, फिर नहीं आ बात हो गई। सलमान अली आगा पे आने हैं। Cousin Sal. Yes sir. सादी साउथ अफ्रीका वाला रिकॉर्ड जरा पुल आउट कर। मैं वही पुल आउट कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के 6 मैचेस, 428 रन्स, 85.60 की एवरेज, 98.84 का स्ट्राइक रेट। हालांकि वो डाउन आया होगा, बहुत डाउन आया। आई थिंक 119 था। हाँ, ऐसे ही था। From what I recall, it was well over 100 and now it's on 98 or whatever. उसके लास्ट 19 इनिंग्स में जो T20 स्ट्राइक रेट है उसको मैच करने लग गया अब। ठीक है, बट लुक, गुड ऑन यू कि आपने बैक टू बैक 50s मारी हैं। हाँ, so 3 50s and 1 century in those 6 innings against South Africa. इस सीरीज में भी बैक टू बैक 50s is commendable, but dude, 82 balls to get to your 50? It was a bit too slow. This is not 1989. I know सिचुएशन थी थोड़ी सी, आपको कंजर्वेटिव होके खेलना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज्यादा आप थोड़ी देर कंसोलिडेट कर लो and then it is your job to accelerate as well then. And you are supposed to take down spin and also अगर take down नहीं करना, proactive हो जाओ, singles doubles तो निकालो. You're Salman Ali Agha for crying out loud. How have you scored your 50 in 82 balls and then you depart for 69 of 106? That's slower than Mohammad Rizwan, bro. Throwback innings. Proper. I mean, slower than Mohammad Rizwan. Yeah. और मतलब बहुत ही कम attacking shots थी यार. I can count them on my fingers. जब मारी है तो बड़ी अच्छी मारी. बहुत अच्छी मारी है. He went up and over extra cover versus both pace and spin, जो उसका इलाका है. और मिड विकेट. हाँ, मिड विकेट पे भी cousin Sal coded region है ना, extra cover. बीच में नहीं आ रही थी शॉट. Either side of the boundary by the way, mid wicket and extra cover. But extra cover पे तुमने point out किया था कि बहुत देर से वो शॉट नहीं मार रहा. लेकिन मारी. Yeah, this time he takes down both pace and spin in that region and then obviously he's sweeping and slob sweeping, वो तो करता ही है. But 69 of 106 is not good enough. You took an eternity to get going, my man. It's like 20 balls too अच्छा, much. पिछले मैच में ना मैं इतना लीवे भी देना हूँ. 20 balls too much. 20 balls too much is correct. नहीं, वैसे तो 30 balls too much. 30 balls too much है. लेकिन चलो 20 balls too much. 20 भी चलता. 69 of 86 पे हम लोग ये बातें ना कर रहे होते आके. सही है. You killed off the momentum. ठीक है, 15 ओवरों में आपके मतलब कि 45 रन थे, इस तरह कुछ सीन था. I don't remember the exact figure, but that's kind of around where you were at. ठीक है, 50 होंगे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं थे. So the thing with cousin Sal is कि I have really liked his progress in ODI cricket. This is a bit of a dhabba.
बिकॉज ही शुड हैव नोन कि किस तरह मैंने पेस करनी है इस इनिंग्स को. मैं इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, धब्बा नहीं बोलूंगा ऐसे. आई नो सलमान अली आगा वुड रिकॉग्नाइज कि वाजंट अ ग्रेट नॉक. जिस तरह की उसकी ओडीआई क्रिकेट में पहले परफॉर्मेंसेस आ चुकी हैं, तो आई फील it was underwhelming, sure, but it wasn't a dhabba, bro. धब्बा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. But I was just disappointed because I felt like he had cracked ODIs. Exactly, disappointed. चलो वो एक इनिंग्स तो हो ही जाती है, bro. KL Rahul, remember that World Cup final? अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. पिछले मैच में ना मैंने साथ को जब ये खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, कजन सैल प्लेयर ऑफ द मैच था उस मैच में, बाय द वे. मैंने इसको मैसेज किया और बोला कि यार वैसे सलमान अली आगा प्लेयर अच्छा है और लॉन्गर फॉर्मेट स्टॉक्स आर ऑन द राइज, बस T20 में ही इज लाइक स्लंपिंग हार्ड. ठीक है. और truth be told, he was never a good T20 player in the first place. बहुत ही minimal आपके पास evidence थी कि he could potentially do something. कल मैंने मैसेज किया कि यार वैसे सलमान अली आगा बड़ा फारिग खेल रहा है. I mean, खेल तो गंदा ही रहा था. 4 of 24 पे I was like, damn man, this is bad. वो तुम 20 बॉलों की जो बात कर रहे हो, वो ही है. वो 4 of 24 कर लो, आप 4 for 14 हो जाओ यार. 10 बॉल है, इतना तो कर लो ना. I don't know, not entirely convinced. अगर हम रेटिंग्स कर रहे होते तो मैं 5 देता. रेटिंग्स नहीं कर रहे हम. बैटिंग में अगर किसी को 10 दे रहा हूं, मैंने तो मोहम्मद नवाज को 10 ही मिलते हैं. स्टार्ट्स ऑफ विद एन एजी 4 व्हिच इज फाइन. ठीक है, उस वक्त तो चौका ही नहीं आ रहा था, तो चलो चौका तो आया उसका. देन ही यूजेस हिज फीट टू स्मैश 14 डाउन द ग्राउंड फॉर अ बिग 6. डाउन द ग्राउंड बहुत सॉलिड गेम है यार. बहुत फिट मार. पुल्स डाउन द ग्राउंड, मोज ओवर मिड विकेट. आखिरी ओवर में काबा यम्जी पीटर को जो 22 रन मारे हैं, उसमें से यार जो 2 छक्के वो ओवर मिड विकेट मारी है, फिर एक स्वीप भी मारी है नवाज ने. दैट वाज अ गेम चेंजर. फिर सीमो ने आकर वो छक्का मारा इनसाइड आउट ओवर द कवर्स. कमाल. वैसे तो अगर आप वैसे तो राणा जी ने भी मारे. वैस जूनियर की भी 2 बाउंड्रियां उस मोमेंट पे क्रूशियल. एक स्टंप्स को लगकर चली गई और एक कतरी. ठीक है, इनसाइड एज. बट नवाज यार, आई मीन ओवरऑल ही लुक्ड completely comfortable on this pitch. ठीक है, उसको कोई वो ग्रेमलिन्स या डीमंस नहीं लग रहे थे. वो फर्क पिच पे बैटिंग कर रहा था यार. बॉश को मारा और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पुल पे. हाँ, वो अजीब, उसकी बड़ी स्ट्रांग जोन है वो. He does swat the ball over long on for 6. That is his shot. ठीक है, उसका आर्क बनता है उस तरह का. And then he also poked Bosch over his head for 4. ठीक है, डाउन द ग्राउंड पोकी शॉट मारी. बट या वही गेम तो सॉलिड थी. 59 रन्स मारे. रन अ बॉल 59 रन्स एट द डेथ उसने अच्छा खासा मारा है. Another rescue act. वही मैं कह रहा हूं, रेस्क्यूड पाकिस्तान हमेशा ही. पता है पिछले मैच में वो छक्का बड़ा इंपॉर्टेंट था, पेनल्टीमेट ओवर की आखिरी बॉल पे. मैं फिर बोलूंगा वो उसी की गलती थी कि वहां तक पहुंच रहा था. श्योर, बट देन अगेन ही इज बीन काइंड ऑफ क्लच. बड़े मैचों में उस तरह भी क्लच नहीं हुआ. टूर्नामेंट क्रिकेट में वहां पे थोड़ा इशू है. बट लुक, इवन दो देखो गीली बॉल के साथ ही वाज रियली पुअर विद द बॉल, बट बैटिंग में तो आपको वो वाज ही पाकिस्तान बेस्ट बैटर प्रोबेबली. 100%. 10 नंबर ही मिल रहे हैं, क्योंकि आप उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ बैटिंग में. या बट नहीं, आई थिंक कुछ ही पॉजिटिव्स है गिने चुने. उनमें से एक मोहम्मद नवाज की बैटिंग है, साइम अयूब की बैटिंग है. राणा फॉर्म भी ठीक था. हिज कैमियो 28 of 18 वाज वेरी वेरी क्रूशियल. ठीक है, आया है वो, ही अनकन्विंसिंगली चिप्स द बॉल ओवर कवर्स. अजीब सी चिप मारता है कवर्स के ऊपर. उसके बाद पुल शॉट है उसकी, स्वाइपियां, पुल शॉट है. एक तो जो 6 मारा उसने बहुत ही कुत्ता मारा. ठीक है, एंड देन देयर वाज अनदर बिग 6 डाउन द ग्राउंड वर्सेस बॉश. वो भी काफी कुत्ता था. राणा जी फिर कुत्ते तो हो जाते होते. राणा जी को फुलर एंड डिलीवरी मिल जाए ना जो बॉश ने करा दी थी, वो एक उनकी इतनी बैट स्विंग आती है ना, पता नहीं कहां से आ रहा होता बैट. सही है. आई लव दैट नॉक. आई थिंक दैट 28 of 18 वाज रियली गुड. और फिर कुछ ही लोगों ने विकेट ली इस मैच में. राणा जी उनमें से एक विकेट राणा जी की भी थी, बड़ी ड्रॉप से कैच. सो डज नवाज. सो उनके वैसे वहां पे कुछ मार्क्स कटते अगर हम कर रहे होते. अच्छा, हर प्लेयर को रेटिंग दे के ये बोल रहे अगर आप कर रहे हो. नहीं मतलब कौन अब वक्त जाया करे उसके ऊपर यार. नहीं कर रहे. अच्छा, हमने ब्रीड्सका की कैप्टनसी ब्लंडर का तो बात किया. काबा यम्जी पीटर वाला शाहीनी कप्तानी पे क्या ही नोट्स है. नहीं है, कुछ नहीं है ब्रो. 8 ओवर बाद वो उतार दिया था उसने अपना नसीम को. यही उससे एक्सपेक्टेड था. उसके बाद क्या ही करता वो. कोई नोट्स ही नहीं है. एट वन पॉइंट ही वाज लाइक, अच्छा मैच हार गए, ये ले तलत, तू भी बॉलिंग करा ले. वो तो ठीक ही किया ब्रो. तलत को निकालो. तलत को जाना पड़ेगा. Even though I think ODI is his best format. Yeah, it's the format that suits him best. But that Salman Ali Agha and Hussain Talat का वो जो बन रहा है, वो भी नहीं. रिजवान सलमान अली आगा and Hussain Talat, that's not. It doesn't make sense. ऊपर से यार वही बात है, you're overloading your team with pace bowling options. एक स्पिनर रखो, राणा फॉर्म को रख लो, तलत को निकाल कर आप प्रॉपर बैट ले आओ हसन नवाज में. 6 पे नवाज, 7 पे सॉरी 6 पे हसन नवाज. नहीं, अगर तुम राणा फहूम को रख रहे हो तो फिर तुम निकाल किसको रहे हो फॉर अ स्पिनर.
अगले मैच में नसीम को निकाल रहा हूँ. नसीम को निकाल के अबरार या फैसल अकरम. Yeah. And then you remove Hussain Talat and bring in Hassan Nawaz. Basically. That makes sense to me. नहीं, but we're still a seamer short in this, no? नहीं. राणा जी, वैस जूनियर और शाहीन है ना फिर. अच्छा, शुरू से शुरू करो ना. I would say हसीब को खिला दो. खिलाएंगे नहीं. तुम अपनी टीम नहीं बना रहे. अच्छा, मगर बाय द वे रियलिस्टिक होके कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं. हसीब और फैसल अकरम को गेम नहीं मिल रहा. अच्छा चलो, रियलिस्टिक होकर फखर, साइम, बाबर, रिजवान, सलमान, मे बी हसन नवाज, मे बी they'll go there. They can go. हाँ, they could. चांस है. रियलिस्टिकली अगर बात करें तो हसन नवाज आ सकता है. हाँ, क्योंकि वो तलत को 2 गेम्स मिल गई, हसन को भी 2 दे देंगे. 7 पे नवाज ही रहेगा, 8 पे अब राणा फहमी रहेगा. 8 पे राणा जी आ गए, 9 पे शीनो आ गया, 10 पे वैस जूनियर, and then 11 पे अबरार. That does kind of make sense to me. That'll be fine. Yeah. नसीम को रेस्ट दे रहे, ड्रॉप नहीं कर रहे. Yeah, but हाँ चलो, अब before we end this podcast, it would be important to discuss some South African performances. उनने इतनी बैटिंग कर छोड़ी है कि ना बात करें तो जुल्म है. I mean, Quinton de Kock की बात करनी है, डिजोरी की बात. Yeah, और फिर मैं तो लुआन डी प्रिटोरियस की बात करना चाहता हूँ. What an innings! I know कि 46 और 40 है, मगर उसने ही set the tempo. देखो ना यार, उनका 19 साल का बच्चा दूसरा मैच खेल रहा है अपना. ठीक है, he has understood the task assignment. Yes, he has understood the assignment कि अच्छा modern day cricket है, मैं मार धाड़ वाला ओपनर हूँ, I need to create impact right from the word go. क्या उसकी cover drives, amazing, delightful, मलाई bro. Yeah, उसकी इतनी strong base है ना कि when he times them it's so crisp. That's the beauty of Luan de Pretorius. मैं अभी भी लून बोल देता हूँ. थोड़ा Graham Smith ही है bro. बेस स्ट्रॉन्ग है और वहां से उसकी सारी शॉट रेंज खुली है. ब्यूटीफुल टाइम, pure timing of the ball. He's like a Graham Smith with a power game. Yeah. Because Graham Smith was more gritty. He was a great opener. Yeah. I mean, he's an all-timer, right? और कप्तान तो खैर the most successful ever. So, you know, those cover drives, those flicks to mid-wicket, then he brings out the pull shot and he slashes at width. Full marks. Full marks. Top 46 or 40, man. वो अलग बात है कि ड्रॉप हो गया. 18 पे ड्रॉप हो गया और उसको आउट हो जाना चाहिए था वहां पे. क्या कर सकते. लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है यार खेल. नसीम भी बच रहा था उस बॉल से. He was doing this. ये हालांकि सीमो जो है नजर नहीं आई उसे, या क्या है, हो जाता होता है कभी. नहीं, मगर सीमो का मसला थोड़ा है फील्डिंग में तो है हल्का सा. He's not as good a fielder as Shaheen, for instance. Shaheen तो बहुत अच्छा. नहीं, शाहीन बहुत अच्छा. Shaheen और even Haris Rauf is also an elite fielder. He's a really good fielder. अच्छा, हारिस रऊफ. हाँ, ठीक है. बस बहुत गुस्सा है उस पे आजकल. तुम बहुत ही ऑफ हुए हो. मैंने कुछ बोला नहीं है उसको, कोई बदतमीजी नहीं. He's really good fielder. Wreck-It Ralph. Anyway, so उसके बाद obviously लून तो था ही था, but Quinton de Kock rolls back the years, baby. Yes sir. Yeah, in his first game after 2 years in ODI cricket, World Cup के बाद he gets a 50. मैंने किसी की ट्वीट पढ़ी थी, I'm sorry I forgot the username जिसने वो ट्वीट की थी, लेकिन किसी ने लिखा हुआ था Quinton de Kock is an all-timer when he wants to play cricket. That's also fair. Look, he scored 63 in his first game after 2 years comeback game में, backs it up with 100 और तेज 100. 48 ball 50, 96 ball 100, ends unbeaten or walks off unbeaten with 123 of 119. और वो भी एंड में स्लो हुआ है. He didn't really care at that point. वही ना. हाँ. When he cares, he's really good. But look, what a comeback to ODI cricket. मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसका भी फॉर्मेट ODI ही है. बेस्ट फॉर्मेट ODI है. 2200s. And I feel कि इसको अगर वो रिटायर हो भी रहा था तो वो ODI से ना होता. हाँ, वो देखो दुनियाई क्रिकेट के अंदर चीजें हुई हैं यहाँ पे. He probably wanted to take the franchise route with the Dream 11 things happens. हाँ, just by the way, हम उस दिन साउथ अफ्रीका का ODI की टीम बना रहे थे, मैं और बेराम बैठ के. बहुत कुत्ती टीम. इनकी फर्स्ट टीम बहुत कुत्ती है. They're proper contenders for that home World Cup. ठीक है, if they play their cards right, of course. But look, Quinton de Kock gets a life on 15. Nawaz of all people drops his catch. Yes. And then यार क्या उसने कवर रीजन में मारा है. Extremely strong in the cover region. Grounded या lofted, उसने cover region में पेला है पाकिस्तान को. And then of course his pulls and swipes. Endless pulls and swipes. End तक वो यही करता रहा. Slog sweeping भी. Yeah, sweeping and slog sweeping was exceptional. Leg side game तो उसकी पिछले मैच ही बहुत अच्छी थी, बल्कि they were showing that on broadcast. कितने runs leg side मार दिए. But then you saw those couple of big sixes over long off. कुत्ते छक्के. I loved the knock. Brilliant. I feel कि यहाँ पे यार 81 innings हो गई हैं. बॉबी को 100 मारे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगला 2 साल खेला ही नहीं है, वो आके 100 मार गया. और इससे फर्क पता है क्या है? He comes from a country where there's a very strong sporting culture. He's a thorough professional. ठीक है. And then of course, I don't know about that though. And then of course आप अगर Quinton de Kock को as a bowler सोचो कि मैंने इसको आउट करना है, width नहीं दे सकते. Width नहीं. Straight down the leg side pads या पे की चौका छक्का है. Full कराओ.
पिट गए एक जगह, रूम क्रैम्प करना है इसको। एक ही चीज है, टाइट लाइंस, क्रैम्प हिम फॉर रूम, ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द रखो ताकि ही चॉप्स ऑन, बिकॉज़ ही हैज बीन चॉपिंग ऑन। नहीं और भी खैर तरीके तो हैं, बट दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वे राइट नाउ। आप एज अ बॉलर कभी भी एम नहीं करते कि मैं इसे चॉप ऑन करूंगा, बाय द वे। नहीं बट यू कैन बोल दैट, वो चैनल बॉल करो, क्रैम्प हिम फॉर रूम, वहां से either chops on, edge निकल सकती है, ये basically what did Bosch and Berger do? Exactly what we just said. Yeah, they kept hitting the channel. अगर आप क्विंटन डी कॉक को भी क्रैम्प कर रखो, उसको समझ ना आए कि कहाँ खेलनी है, उसको रूम ना दो bro. You either target the stumps but not like middle stump, off stump. Middle stump पे भी पेल देगा. Top of off, whole region. Yeah, and just make sure कि या तो he edges out or he chops on, or slower ones can get rid of him as well. But देखो ना, टास्क इतना मुश्किल नहीं था, हमने आपको डी कोड कर दी कि कहाँ पे उसको बॉलिंग करानी थी। शायद ड्यू की वजह से थोड़ा मुश्किल भी हो गया था। You can still keep hitting a length, Saadi. शुरू में तो कर सकते हो ना, when the ball is not wet. खैर शाहीन wasn't all too bad with the new ball. With the new ball. Yeah, ठीक था, उसके बाद वो भी पिटे। सारे पिटे तो इनमें सारे, we're not even wasting any breath on the bowlers, because क्या बात करें। Valjuny was good. हाँ, उसको flowers दे दिए। बाकी everyone उसका भी वो pace was higher than the rest। बस। और बाकी एंगल बन रहा था। एंगल बहुत वो तो बनता है। Definitely वो बन रहा था। खैर De Kock was great, so was Tony DeZori. Yeah. I mean, those guys put on a clinic. It was a proper exhibition of modern day ODI batting. Tony DeZorzi, yaar, what a tour he's having. Test में runs किए, T20 में भी एक T20 में impress किया. And now he slams a 40 ball 50 versus Pakistan. Again, dropped on 54 by Fahum. 50 कर चुका था. मगर भाई जो उसने leg side पे शॉटें मारना शुरू किए versus pace and spin, he was just hacking the ball at one point on the leg side. But then he showed us कि he's not limited to that either. We know he's a good reverse sweeper. And उसकी offside की game बड़ी strong. रिवर्स स्वीप पे वैसे कैच होता तो बचा था, मगर चलो उसने वहां चौका निकाला, उसके बाद ड्यूड द कवर ड्राइव्स एंड द एक्सपेंसिव ऑफसाइड शॉट्स। वो तो जब हमें इतना अच्छा प्लेयर लगता भी नहीं था, हमें पता था उसकी ऑफ ड्राइव में बड़ी कवर ड्राइव में बड़ी खूबसूरत है। नहीं ऑफसाइड गेम भी बाद में उसने दिखाई, बहुत अच्छी दिखाई, यू नो, कवर ड्राइव्स एंड एक्सपेंसिव ऑफसाइड शॉट्स, बट आल्सो एक आई डोंट थिंक दैट वाज एन एज। आई फील लाइक ही प्लेस्ड वसीम जूनियर टू द थर्ड मैन फेंस, क्योंकि उसको पता था कि एंगल ये बन रहा है, एंड ही प्लेड हिम इनफ, एंड देन देयर वाज अ बिग शॉट डाउन द ग्राउंड, व्हिच इज रिमेंबर दैट शॉट बाय द वे। यार वो लग रहा था कि एज है, और शायद हो भी, अब मुझे याद नहीं है, बट ही प्लेड द बॉल डाउन टू द थर्ड मैन फेंस। इट वाज लाइक अ डैब टू थर्ड मैन, बट फिर बिग शॉट डाउन द ग्राउंड वाला छक्का भी उसका बार-बार देखते जा रहे हैं। रियली इंप्रेस्ड, आल्सो लाइक द वे ही यूजेस हिज फीट। 76 of 63 again. Quinton de Kock ran an exhibition and so did Tony DeZorzi, और इन लोगों ने आराम से यू नो सिक्योर किए विन। वो आउट हो गया बेचारा राणा जी पे, टोनी डिजोरी। बट गुड शो साउथ अफ्रीका, and I think we are nicely set up for the final. साउथ अफ्रीका को देखो ना यार, इनएक्सपीरियंस टीम के होने के बावजूद कैसे जल्दी अडेप्ट कर गए। वो अडेप्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, आपसे अपने घर पे नहीं दिखाई जा रही। That's professionalism. Adaptability. Especially, it was really disappointing to see Pakistan bad, by the way. Yeah, that is the biggest concern. और मुझे बाकी सब चीजें यू नो मैं हजम कर लूंगा, चलो टॉस आपने गलत कॉल कर दी, आपको आइडिया नहीं था कि ड्यू आएगी। मैं तो हजम कर चुका था। I was like मुझे करनी है, पहले बैटिंग टेस्ट होंगे यार, ये इन्होंने वरना कभी नहीं करनी थी। ठीक है, इन्होंने वैसे कभी करनी नहीं थी, मगर चलो फेल ही हुए ना, जैसी बैटिंग पहले आई हम्बल हो गए। इस उम्मीद में कि ये शायद इन्हें कुछ लर्निंग्स मिल जाए, इसलिए होपफुली कुछ मिली होंगी, बट वही बात है कि वो जो 3 एक्सपीरियंस्ड ब्लोक्स बैठे हुए हैं, उनकी और कितनी को लर्निंग है, ये तो उनका फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। इट सूट्स देम बेस्ट, ऑल 3 ऑफ देम, फखर, बाबर, रिजवान, इन तीनों का, खैर रिजवान का टेस्ट बेस्ट फॉर्मेट होगा, बाबर एंड फखर का तो बेस्ट, उनका तो बेस्ट ओडीआई है। और क्विंटन डी कॉक ने आपको दिखा दिया किस तरह खेलते हैं, कि बेस्ट फॉर्मेट में किस तरह आप अपने आप को लुआन बनवाते हो, अपना लुआन प्रेटोरियस बनवाते हो अपना। अच्छा खैर, हम सारी बातें कर ली हैं, लेकिन एक बात मैं अब खत्म करने से पहले वो साउथ अफ्रीका का टीम डिस्कस कर ले, फर्स्ट टीम इनकी ओडीआई की। हाँ यार, क्विंटन डी कॉक विल नाउ ओपन कुछ क्लासेस आउट, रिटायर करके। क्विंटन डी कॉक ओपन्स विद ब्रीट्सका नहीं, रिकल्टन नहीं, रिकल्टन। It's a tough one. Breedska can open as well. I don't know why he's not opening. Breedska/Rickleton. ठीक है। First drop Aiden Markram. Yes, Aiden Markram probably first drop. फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, Tristan Stubbs. Luan de Pretorius भी तो है। So Quinton de Kock opens with either of these 3 guys. नहीं, Aiden Markram को मैं first drop पे रखूँ इसमें। Markram नहीं, Luan de Pretorius, Rickleton and Breedska. Yeah, sure. And Breedska and Luan can also fit in the middle order if need be. I don't think they don't need him though. Anyway, Quinton de Kock partners a really good opener. ठीक है? 3 of these. Yeah, then Markram first drop, Stubbs at 4, Baby at 5, Brevis, और फिर 6 पे मैं चांस ले लूं लुआन पे। नहीं, हमने कुछ सोचा। मिलर। ओ मिलर,
6 पे Killer Miller number 6. 7 पे I would bring Corbin Bosch into the Corbin first Bosch. team. हाँ. Yeah, I would do that. यार एक मिस कर. हाँ 7 पे बॉश था, 8 पे Janssen. यानसन, 9 पे महाराज, 10 पे रबाडा और फिर एक और पोजीशन खाली है. कुर्जिया. हाँ, कोर्जिया. That is a killer attack. और अगर आपको spin लानी हो, George Linda is an option who you could potentially bring in. Bjorn Fortain hasn't done all too bad, but I feel like Linda probably gets the... Donovan Ferreira is right there in the Ferreira squad. is also an in option. the squad, yeah. तो ओवरऑल बैलेंस बहुत सॉलिड है इनका. इफ यूर गेटिंग यानसन एट 8, बैटिंग लाइनअप आपकी डीप है, जो कि बाय द वे साउथ अफ्रीका की अभी जो सक्सेसफुल टीम थी ना इन द पास्ट, दे वर बैटिंग टिल 6, मुक जाते थे 6 पे वो. और इसमें राशि तो है ही नहीं कहीं पिक्चर में. राशि आई डोंट थिंक खत्म. डिजोर्जी भी है. हाँ. ठीक है, उसके अलावा उन तीन ओपनर्स में से 2 वो होंगे. मल्डर है. ओडीआईज में यू हैव बर्गर ऑन द बेंच. और क्या चाहिए? क्वेना मपाका मे बी अ बिट टू सून. क्वेना मपाका भी है वैसे तो. हां, बहुत बंदा है. और इनकी एकदम से जो ये क्रॉप आया ना, बहुत इंप्रेसिव क्रॉप है. आई फील लाइक दे फाइनली रियलाइज्ड कि वी नीड टू बैक सम टैलेंटेड बैटर्स. देखिए टोनी डिजोर्जी में टैलेंट बहुत है, परफॉर्मेंस नहीं है. अल्टीमेटली आ जाएगी, आ ही गई है ना स्कोर पे. आ गई है. दिस इज अ गुड कॉल. अभी तो हमने जानेमन मिलान की बात नहीं की. बिल्कुल, जानेमन मिलान तो बेचारा रह ही गया कहीं. नेवर हर्ड ऑफ हिम. एक और भी था इनका, जॉन स्मॉट्स. यस सर. वो भी रह गया कहीं बीच में. Anyway, I think that kind of wraps things up. That wraps it up. Yeah, बाकी यार ODI के बाद मिलेंगे. Enjoy करो और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. याशियां मजेजेस. See you all next time भाई. आ जाना वापस फिर से. लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम, मुझे, माहिन, नोमी, हर एक को हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcast, Pandora, Castbox, Podcast Addict, Castbox बोल चुका हूँ, Podbean, और जहाँ जाए हम वहाँ पे जाके हमें सुन सकते हैं. जर्नी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. पोस्टर्स हमारे खरीद लें और चिल मारो. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Boy Gaza.